तो भाई आज बात करेंगे कि इजराइल सोमालिया के पीछे क्यों पड़ा है भाई। कुछ ऐसे चीजों पे रिएक्ट करेंगे, उसके बाद अपना एनालिसिस भी आपको बताएंगे, होश उड़ जाएंगे आपके। Today, Somalia is struggling the two most difficult and complex terrorist groups, ISIS and Al Shabaab, which is also Al Qaeda in principle. We've been fighting with them for the last couple of decades, not almost close to 2 decades, I say. So, whatever they say, whether it's their own or whether it's Al Qaeda, at the end of the day, this is a sense of Somaliness that they wanted to attract the Somali people's attention. Why do they claim and claim that they are defending Israel while they are destroying Somalia? तो ये कह रहे हैं दे आर डिस्ट्रॉइंग सोमालिया। दे कौन हो गए? आइसिस एंड अलकायदा। ठीक है, एंड साथ में कह रहे हैं दे आर डिफेंडिंग इजराइल। वो खुद ही बता रहे हैं, ये प्रेसिडेंट ऑफ सोमालिया ने इंटरव्यू में बोला है। इसका क्या मतलब हुआ? पहले तो मुझे लगा कि मैंने गलत ही सुन लिया शायद, फिर मैंने दोबारा सुना, तीसरी बार सुना। इसका मतलब तो यही निकल रहा है कि वो सपोर्ट कर रहे हैं इजराइल को। कौन? आइसिस और अलकायदा। ठीक है, एंड सोमालिया में आके डिस्ट्रक्शन फैला रहे हैं, टेररिज्म फैला रहे हैं, ताकि यहाँ पे सेपरेट कर दे लोगों को। ठीक है ना, सोमालीलैंड बना ले अलग से, एंड वो उनको बनाने अलाउ कर दे मिलिट्री बेस बनाने के लिए। And destroying the Somali people, their livelihood and their security. Why do they claim that they are going to defend Somalia? Let them take the peace, let them stop the terror, let them agree with their Somali people and be part of Somalia. Let them denounce being part of Al Qaeda and join the mainstream Somali politics and Somali way of life. But Somali people are smart enough to understand that this is a crocodile's tear. They don't have much to help Somalia. They are the ones who facilitated Israel to come to there because they keep Somalia to remain weak, and because of that. फिर से बोल दिया कि वो लोग इजराइल को सपोर्ट कर रहे हैं, सोमालिया को वीक करने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि सोमालीलैंड अलग से बना दे। ठीक है, डिवाइड एंड रूल, वही सेम फॉर्मूला यार, वही सेम फॉर्मूला। कॉलोनियल रूल का वही फॉर्मूला है, डिवाइड एंड रूल। ठीक है, एंड वहां पे एक तरफ सोमालीलैंड हो जाएगा, जिसको कौन करेगा, हेड कौन बन जाएगा उनका? हमने कहां देखा है कि ऐसे एग्जैक्ट सेम चीज हुई है? सीरिया में अपना एक अलकायदा का लीडर, अपना एक टेररिस्ट बिठा देंगे वहां पे एज द लीडर, पपेट लीडर। यही सेम चीज सोमालीलैंड में करने की कोशिश हो रही है, ऐसा प्रेसिडेंट ऑफ सोमालिया खुद बता रहे हैं। पिछले 2 डेकेड से लड़ाई हो रही है। तो भाई आपने सुन लिया प्रेसिडेंट ऑफ सोमालिया ने क्या बोला। अब देखो, अब सुनते हैं कि जनरल वेस्ली क्लार्क, जो कि बेसिकली दिस गाय वाज हेडिंग नेटो, एंड ये अमेरिकन आर्मी में जनरल था ये आदमी। उसके बाद ही वाज रनिंग फॉर प्रेसिडेंट। उसने क्या बोला था, अब वो देखते हैं। Right after 9/11, about 10 days after 9/11, I went through the Pentagon and I saw Secretary Rumsfeld and Deputy Secretary Wolfowitz. I went downstairs just to say hello to some of the people on the Joint Staff who used to work for me, and one of the generals called me in. He said, "Sir, you got to come in. You got to come in and talk to me a second." I said, "Well, you're too busy." He said, "No." He says, "We've made the decision. We're going to war with Iraq." This was on or about the 20th of September. I said, "We're going to war with Iraq. Why?" He said, "I don't know." He said, "I guess they don't know what else to do." So I said, "Well, did they find some information connecting Saddam to Al Qaeda?" He said, No. He says, "There's nothing new that way. They just made the decision to go to war with Iraq." He said, "I guess it's like we don't know what to do about terrorists, but we've got a good military and we can take down governments." And he said, "I guess if the only tool you have is a hammer, every problem has to look like a nail." तो समझे? तो बेसिकली ऐसा है कि यार अपन इतने पैसे खर्च करते हैं अपने मिलिट्री पे, ठीक है, आज के डेट में ट्रिलियन ऑफ डॉलर्स। अब यार इसका कुछ तो यूज करना ही है, तो गवर्नमेंट्स को लुढ़काते जाओ, रखें अपने पास। तो फाइनेंस के तौर पे डिसीजन मेकिंग हो रही है, ठीक है, एंड ये इनका वर्जन है, ठीक है, बट इसके पीछे जो कंस्पिरेसी है बहुत ही ज्यादा डीप रन करती है। आगे सुनो ये क्या कह रहे हैं। So I came back to see him a few weeks later, and by that time we were bombing in Afghanistan. I said, "Are we still going to war with Iraq?" And he said, "Oh, it's worse than that." He said, he reached over on his desk, he picked up a piece of paper, and he said, "I just got this down from upstairs," meaning the Secretary of Defense's office today, and he said, "This is a memo that describes how we're going to take out 7 countries in 5 years, starting with Iraq and then Syria, Lebanon,
Libya, Somalia, Sudan, and finishing off Iran. I said, is it classified? He said, yes, sir. I said, well, don't show it to me. तो भाई 7 कंट्रीज इन 5 years ये लोग पहले ही डिसाइड कर चुके थे हम इनको बॉम्बार्ड करेंगे, ठीक है। एक एक करके उसको रन थ्रू करते हैं, ठीक है। सबसे पहले इराक में सद्दाम हुसैन, ऑयल सबसे पहले, ठीक है। उसके बाद उसने एक बहुत बड़ी गलती कर दी थी भाई, उसने अपना ऑयल बेच दिया था यूरोज में, वेरेज ऑयल हमेशा बिकता है यूएस डॉलर में। यूएस डॉलर इज नॉट बैक्ड बाय एनीथिंग। जब इन्होंने वर्ल्ड वॉर 2 के बाद डिसाइड किया था कि भाई हम आपको यूएस डॉलर के अगेंस्ट पेग कर देंगे हमारी करेंसी, ठीक है, क्योंकि यूनाइटेड स्टेट्स अल्टीमेट हीरो निकल आया था उस टाइम पे वेस्टर्न वर्ल्ड का, तब गोल्ड बैक्ड रहती थी। फिर उसके बाद डाउन द ईयर्स उन्होंने डिसाइड किया कि नहीं दे वंट, उनके पास उतने गोल्ड के रिजर्व नहीं थे या कुछ तो प्रॉब्लम थी। आई गेस इट वाज बिकॉज दे डिडंट हैव इनफ रिजर्व्स। दे आर लाइक स्क्रू इट, क्या करना हमको अपने करेंसी को गोल्ड से बैक करने की, हमारा तो यूएस डॉलर है ही है ना। देन ऑफ कोर्स दे वर लाइक कि किसी चीज यूएस डॉलर कैसे चलेगा, कैसे बनेगा किंग डॉलर अगर सारी चीजें उससे ट्रेड होने लगेंगी, अगेंस्ट यूएस डॉलर्स ट्रेड होने लगेंगी। तो वन ऑफ द बिगेस्ट कमोडिटीज जो ट्रेड होती है ऑयल, उन्होंने कहा ये ऑयल हमेशा यूएस डॉलर में ही ट्रेड होगा। तो उसने बेसिकली यूएस डॉलर को चैलेंज करने की कोशिश की सद्दाम हुसैन ने, एंड देयर लाइक उड़ा दो, ठीक है। एंड एक और मेन बहुत बड़ा कल्प्रेट है इसका, उसके बारे में अभी करेंगे डिस्कस, ठीक है। इराक हो गया, फिर उसके बाद भाई इजराइल का आता है ना पर्सपेक्टिव कि भाई ये सब अगर आप उड़ा दोगे, ये सब ऐसे कंट्रीज हैं, ठीक है। सऊदी अरेबिया क्यों नहीं किया, ठीक है, यूएई क्यों नहीं किया, बहरीन क्यों नहीं किया, क्योंकि ये सब एलाइज हैं, ये ऑलरेडी झुक गए थे अमेरिका के सामने, ठीक है। ये बाकी जितनी कंट्रीज थी देवर लाइक ये बंदा जो है ना इजराइल, ये सही नहीं है यार, इसको हमको ठीक करना पड़ेगा, ठीक है। तो जितने भी लोग इजराइल को अपोज करते थे उन सबको अटैक करा दिया, ठीक है। सीरिया असाद रेजीम थी, प्रो ईरान, ठीक है, प्रो रशिया, हटवा दिया उसको, अब जाके एक आईसिस के टेररिस्ट को बिठा दिया उधर, ठीक है। उसके बाद आ जाता है लेबनान में हिजबुल्ला है, ठीक है। देयर लाइक लेबनान को भी निकाल फेंको यार, ठीक है। लिबिया में गद्दाफी, ही वाज आल्सो अपोज्ड टू इजराइल एंड ही वाज अपोज्ड टू ये जो वेस्टर्न हेजेमनी है इन जनरल, ही वाज अपोज्ड टू दैट। एंड उसका प्लान था कि भाई जितने भी अफ्रीकन कंट्रीज है उनकी कॉमन करेंसी बनाई जाएगी बैक्ड बाय गोल्ड दिनार होगा वो। एंड उसके पास बहुत सारा गोल्ड था गद्दाफी के पास, जो गुम गया, नेटो ने आके इन्वेड कर दिया और फिर वो गुम गया, ठीक है। तो एंड उसका प्लान था कि लिबिया के पास ऑयल भी है बहुत, तो उसने कहा ये ऑयल हम गोल्ड में ट्रेड करेंगे, यूएस डॉलर में नहीं। एंड एक और हमने इनफैक्ट उस चीज के बारे में एक वीडियो आपको बना के बताया है कि जितनी भी अफ्रीकन कंट्रीज है बहुत सारी जो फ्रेंच कॉलोनीज होती थी, उनकी करेंसी क्या है, एक CF फ्रैंक, तो वो पेग्ड है टू जो फ्रांस की करेंसी होती थी फ्रैंक, अब यूरो हो गया तो उसके अगेंस्ट पेगिंग हो गई उसकी। तो बेसिकली फाइनेंशियल टूल है उन कंट्रीज को अभी भी कॉलोनाइज करने के लिए, वो बेचारी कंट्रीज फ्लरिश ही नहीं कर पाती इस वजह से। तो उसका प्लान था कि भाई इन सबको ये वाली करेंसी मिल जाएगी, दे वर ऑल इन सपोर्ट ऑफ दिस। तो इसलिए फ्रांस को बहुत ज्यादा प्रॉब्लम थी इससे, तो दे वर वेरी मच इन फेवर के इसको लिबिया में गद्दाफी को हटाओ, ठीक है। ईरान, वी ऑल नो, ईरान तो सबसे बड़ा, अगर इनकी बात करें, इजराइल की बात करें तो सबसे बड़ा दुश्मन ईरान है, ठीक है। ऑल ऑफ दिस मेड सेंस, ठीक है। फिर सोमालिया एंड सूडान, यू वुड थिंक यार ये कहां से आ गए। अब देखो सूडान में क्या हो रहा है, ठीक है, यूएई बैक कर रहा है अलोंग विद इजराइल भी इन्वॉल्व है क्योंकि उसकी जियोपॉलिटिकल लोकेशन इतनी अच्छी है, एंड यूएई की अपने खुद के मोटिव्स हैं, वो एक अगेन सेपरेट वीडियो बना हुआ है उसके ऊपर, फूड सिक्योरिटी, गोल्ड, अ लॉट ऑफ उनके अलग अलग मोटिव्स हैं कि यूएई क्यों करना चाहता है, ठीक है। एंड सूडान की जो लोकेशन है बहुत ही बढ़िया है जियोपॉलिटिकली, ठीक है। उनको एक्सेस मिल जाएगा टू पोर्ट्स अपने मिलिट्री बेसिस बनाने के लिए। एंड हमेशा सोचते थे ये सोमालिया कहां से आ गया भाई, सोमालिया में क्यों ये लोग अपना इंटरवीन करना चाहते हैं। अब क्लियर हो रहा है ना, सोमालिया के प्रेसिडेंट ने क्या बोला, पिछले 2 डेकेड्स मतलब 20 साल से लड़ाई चल रही है वहां, ये आईसिस अलकायदा घुसे पड़े हैं वहां पे, क्यों वहां पे कौन सा क्या कहते हैं, वहां पे कौन है भाई, किसके पीछे आप लगे हुए हो। एंड उसने क्लियरली आके बोल भी दिया इजराइल के सपोर्ट में कर रहे हैं वो ये सब। अब समझ में आया ना, अब पूरा गेम समझ में आया सोमालीलैंड का गेम क्या है। एंड सोमालीलैंड उसकी लोकेशन देखो तो वो वहां से यमन में हुतीज को टारगेट कर सकते हैं डायरेक्टली, जिन्होंने नाक में दम किया हुआ है इनके पोर्ट्स नहीं चल पा रहे भाई, हुतीज ने इतना ज्यादा दम कर रखा है। एंड उनको तो अमेरिका भी नहीं हरा पाया। ट्रंप बोल रहा था पूरा रोलिंग अप हिज स्लीव्स, उनको मैं मजा चखाता हूं, क्यों, इजराइल के लिए एप्स्टीन फाइल्स ने तो बेड़ा टाइट ही कर रखा है
अमेरिका का, ठीक है, जो इजराइल बोलता है उनको मानना पड़ता है। ये लोग गए मुंह की खा के आए, इतना ज्यादा नुकसान हो गया अमेरिका को कि वो मुंह की खा के आए हुथीज वहां पे यमन से, एंड वापस आना पड़ा। मुझे समझ में नहीं आ रहा था ये सोमालिया क्यों है यार इसमें, मतलब। एंड ऐसा भी हो सकता है कि एट दैट टाइम कुछ ऐसे लीडर्स रहे हों जो बेसिकली प्रो इजराइल ना हो, एंटी इजराइल हो, एंटी जायनिस्ट हो। आई नो बहुत सारे लोग, आप तो मेरे जैसे ही सोचते होगे, ठीक है, पर बहुत सारे ऐसे लोग भी हैं जो बोलते होंगे कि भाई इजरायली है क्या, हर हर मुसीबत की जड़ इजरायली है क्या? तो भाई फैक्ट्स वहीं अलाइन करते हैं तो क्या करें? अब इसमें मेन चीज ये है देखने की कि अगर ये सोमालीलैंड बन जाता है, अलग से कितने कंट्रीज आते हैं इनके सपोर्ट में? क्या इनके सब जितने भी वेस्टर्न एलाइज हैं वो सब आके रिकग्नाइज कर लेते हैं सोमालिया लैंड को? एंड जो हुथीज हैं अंसार अल्लाह, उन्होंने ऑलरेडी बोल दिया है कि अगर वहां पे कोई भी इजरायलीज आएंगे, कोई भी मिलिट्री बेस बनेगा तो हम उसको अटैक करेंगे। तो भाई बहुत एक्सप्लोसिव हो सकती है सिचुएशन। लेट अस होप इट डजंट गेट आउट ऑफ हैंड। पर जहां पे इजराइल होता है ना, तो कुछ कोई भी नहीं कह सकता किसी चीज की गारंटी के क्या होगा।